Very good evening to our respected speaker, distinguished guests, and all the participants joining us from across Pakistan. I am Rabia Fatma from Scholar Bridge Society, Fatma Jinnah Women University, in collaboration with Save the Bound, and it is my absolute pleasure to welcome you all in today's inspiring webinar. We first begin by thanking Allah Almighty for blessing us with the opportunity to learn, connect, and grow together. Before we begin, I would like to briefly introduce you to Scholar Base Society. Scholar Base Society is a student led non profit initiative working to bridge the gap between talented students and life changing opportunities. Guided by our motto, Inspiring Mind, Changing Lives, SBS empowers students through scholarship guidance, research collaboration, internships, exchange programs, and so on. Through webinars, mentorship, and nationwide collaborations, we strive to help students unlock their full potential. Now, I'd like to acknowledge our collaborative partner, Save the Bound. Save the Bound is a platform committed to empowering individuals, particularly women, through psychological, spiritual, and financial development. By promoting personal growth, emotional well being, financial awareness, and faith based guidance, the platform strives to help individuals build confidence, resilience, and a balanced life. Now comes the most exciting part of today's webinar. It is my immense pleasure and privilege to introduce our honorable speaker, Ms. Mariam Javed. Ms. Mariam is a public health and psychology professional currently pursuing her MSc in Global Urban Health at Albert Ludwig University of Freiburg. Germany, as a prestigious Dart scholar. She completed her MPhil in psychology from Quaid-e-Azam University with an outstanding CGPA of 3.9 and earned her BS psychology from University of Gujarat. Throughout her academic and professional journey, she has served as a visiting faculty member, research supervisor, research associate, and president of Empowerment Foundation for Special Persons. She has authored numerous international research publications, presented her work at national and international conferences, and her research focuses on mental health, public health, migration, and healthcare accessibility. Her remarkable achievements include being selected for Dart Scholarship, Erasmus Mundus Scholarship, and McCall McPain Scholarship, along with receiving several prestigious awards for academic excellence, leadership, and inclusion. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm virtual welcome to Miss Mariam Javed. Ma'am, we are truly honored to have you with us today. The floor is now yours. Thank you. Thank you so much, Rabia, for this wonderful introduction. I would just like कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ क्विकली थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाए. अगर आप लोग जस्ट चैट में अपने बारे में लिटिल बिट बता दें, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप डिग्री अभी बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आज की इस हमारी कन्वर्सेशन के साथ. Then after 5 to 10 minutes, I will just move on with my slides. And then at the end, we will have some question answer session. So I'm looking forward into chat if you people just give a little bit introduction about yourself. Hmm. काफी वैरायटी अवेलेबल है इस टाइम हमारे साथ कन्वर्सेशन में. इसमें बैचलर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के भी हैं, और फ्यू हु आर हियर टू परस्यू PhD. सही, गुड गुड.
My screen is visible to everyone? Yes, it is completely visible. Okay. Okay. So हमारी आज की जो कन्वर्सेशन है इसमें मैं लिटिल बिट बताऊंगी कि व्हाट एक्चुअली इज डार्ड, जिसे जर्मन में डे कहा जाता है, और इसकी एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट करानी हो, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, लाइकवाइज उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ मोटिवेशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई तो करते हैं मगर रिजेक्शन की कौन सी ज्यादा कॉमन रीजंस हैं। And then definitely you people can ask me any question about DRD, about Erasmus Mundus, and even further overall, if you even want to come journey, not particularly upon DRD, you can come definitely upon self-finance as well. So हम उस पर भी बात कर सकते हैं। So first of all, DRD क्या है? DRD एक जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है। ये फंडिंग प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंटर्नशिप्स भी देता है, मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप, पीएचडी के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे इनके रिसर्च कोलैबोरेशन जो हैं वो चलते रहते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप इनकी वेबसाइट पर, मैं स्क्रीन शेयर करते हुए वेबसाइट ओपन करके, ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है डे की। इसके ऊपर इन्होंने हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, स्कॉलरशिप्स के बारे में और लाइफ इन जर्नी। ये ऑलमोस्ट जर्मनी का सबसे बड़ा, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो इस पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप डार्ट के बारे में आपने और पढ़ना है, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम अभी जाते हैं अपना पर्टिकुलरली फाइंडिंग स्कॉलरशिप पर। चूंकि वेबसाइट तक पहुंचना समटाइम, या उस वो वर्क कैसा करती है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और बहुत सारी फेक वेबसाइट होती हैं, स्टूडेंट जाते हैं और वो बस रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर आप सिंपल अपना कंट्री चूज करोगे, हमारा चूंकि अभी पाकिस्तान है। बाकी अगर आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं, आप ग्रेजुएट्स में इंटरेस्टेड हो, पोस्ट डॉक में, जिसमें भी हो, मैं फॉर नाउ इसे जनरल रहने देती हूँ। स्कॉलरशिप पर्पस क्या है? आपने इंटर्नशिप करनी है, लैंग्वेज कोर्स करना है, रिसर्च करनी है, आप यहाँ से सिंपल फिल्टर्स लगा सकते हो। सब्जेक्ट कौन सा है? ये डिफरेंट 5 to 6 डोमेन्स हैं, उसमें ये फाइनेंस करता है। तो हम यहाँ पर, ये डे आपको वैसे भी बताता है कि ओवरऑल जर्मनी में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हम चूंकि पार्टिकुलरली फंडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है कि मुझे सिर्फ वो प्रोग्राम्स बताओ जिस पर डे फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जो जिन प्रोग्राम्स को जर्मनी में से फंडिंग मिल रही है वो ओवरऑल 15 है। इसमें से रिसर्च ग्रांट्स आ जाते हैं, इस ये डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं। मैं इस पे ज़्यादा फॉर नाउ बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो बैचलर्स यहाँ पे मास्टर्स लेवल के हैं। फिर ये बाई नेशनल सुपरवाइज डॉक्टरल, ये वाला ऑप्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में पीएचडी, पाकिस्तान में पीएचडी कर रहे हो, आप यहाँ पर, एक आपका पाकिस्तान में सुपरवाइजर है, एक आप यहाँ पे चूज कर लेते हो, फंडिंग डे देगा आपका आने जाने का सब कुछ, जितना भी आपका एक्सपेंस होगा। फिर आर्टिस्ट के लिए एक पार्टिकुलर स्कॉलरशिप है। फिर फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसमें भी है। इसी तरह से और काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं इनकी। मैं इनमें से रैंडमली आपको कोई एक चूज करके वो किस किस तरह से वर्क करती है, अप्लाई कैसे करना होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं अभी जो हूँ मैं इस पर हूँ, डे पोस्ट पर हूँ मैं। इसमें आप, मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया 15 है। आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट म्यूजिक से रेलिवेंट है, कोई पीएचडी में इंटरेस्टेड है, सिंपल आप उधर वेबसाइट पर जाओगे, आगे आपको पहले ओवरव्यू मिलेगा, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मिलेगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल मिलेगा। तो इधर आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि जी कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो कि डे जिन्हें फंडिंग दे रहा है। तो स्कॉलरशिप 2-3 तरह की होती हैं। एक कुछ इस तरह की होती हैं, यूके वगैरह में होती हैं, जिसमें आप कोई भी कोर्स चूज करते हो और आप सिंपली उस कोर्स में अप्लाई करते हो, उसका एडमिशन लेटर आपके पास होता है और आप जाते हो आराम से, फंडिंग लेते हो, आपको किसी भी कोर्स के लिए मिल जाती है।
बट डे का ये है कि उन्होंने अपने कुछ कोर्स स्पेसिफाई किए होते हैं। अगर हम मास्टर्स की हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल हो सकता है इंटरनेशनल हेल्थ होगा, पब्लिक हेल्थ होगा, इंजीनियरिंग की कुछ खास होंगे, 5-6 कोर्सेज इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो मैं अभी आपको खोल कर भी बताऊंगी, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया होता है कि जी हम इस तरह से ये जो 20, 30, 25, 50 जितने भी कोर्सेज हैं हम इन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मास्टर्स लेवल पर ऐसे वर्क नहीं करती है कि आप रैंडमली किसी भी फील्ड में अप्लाई कर देंगे और आप कहेंगे कि आप सेकंड पे मैं डे के लिए अप्लाई करूं, ऐसे नहीं होगा। तो इन्होंने अपने कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। तो ये इन्होंने इधर कहा हुआ है कि 2027 टू 2028 के लिए जो जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिन्हें हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी ये लिस्ट है। ये आप इधर इस तरह से आपके पास ही आ जाएगी। इकोनॉमिक्स में वो प्रोवाइड कर रहा है, इंजीनियरिंग के ये कुछ पार्टिकुलर कोर्सेज हैं उनमें कर रहा है जी, वो कितने मंथ का है, और ये फर्दर डार्ट स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या चाहिए, और ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। अगर हम फर्दर आगे जाएं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ग्रेजुएट लेवल में चूज कर लेती हूँ चूंकि डार्ट पोस्ट पीएचडी लेवल को भी फाइनेंस करती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं उसने ये मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर मास्टर्स लेवल पर आ रहे हो तो आपका 4 इयर्स का पहला जो बैचलर्स है वो कंपलसरी होना चाहिए आपके पास, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जीपीए जो होता है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी पाई जाती हैं लोगों के ज़हनों में जीपीए को लेकर। इट डेफिनेटली मैटर, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैटर करता, बट मेरी फ्रेंड है इवन अभी जर्मनी में स्कॉलरशिप पर पढ़ी है, शी हैज अराउंड 2 पॉइंट समथिंग जीपीए, और वो अभी स्टुटगार्ट से स्कॉलरशिप पर ही मतलब पढ़ रही हैं। तो ये है कि डेफिनेटली वो एक 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 आप फैक्टर कह सकते हो जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपकी स्कॉलरशिप में। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि आप ये कहो कि आपका, अगर फॉर एग्जांपल मैंने देखा लोग 3 में भी होते हैं लोगों के जीपीए, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। बहुत भी कम ना हो, डेफिनेटली एक बेसिक लेवल तो होता ही है, मे बी 2 पॉइंट के कुछ अर्लीज में ना हो, 2.98 में भी यू कैन मैनेज। इवन मैंने यहाँ तक डे स्कॉलर से मिली हुई हूँ जो अपने बैचलर्स में 1-2 प्रोग्राम में फेल भी हुए हुए थे, उन्होंने रिपीट किया, और इवन जर्नी के अंदर फेल होना इज क्वाइट नॉर्मल। तो ये है कि हर एक का अपना एक जर्नी होता है। पहले तो ये बहुत सारे र्यूमर्स हैं, इनसे आपने ज्यादा इन्हें बॉदर नहीं करना है। फिर सेकंड चीज, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया, बट डेफिनेटली मैंने पढ़ी हुई है तो मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। अगर आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपको हो, बेशक आपका इवन 4/4 भी जीपीए है, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम चांसेस है। इवन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पर जर्मनी में आना चाहो तब भी, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल जो वर्क है उसे बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो मिनिमम 1 to 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस मीन्स कि आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका इंजीनियरिंग की फील्ड है, आपका को बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आके एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली इफ यू लाइक यू कैन डू, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपने फिर कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। इस पर मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन पर भी जब मैं बात करूंगी तो मैं फर्दर एम्फोसाइज करूंगी इस चीज पर कि ये पॉइंट कितना ज्यादा एक्सपीरियंस जो होता है उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास अगर आप इंग्लिश कोर्स कर रहे हो तो आपके पास आइट्स होना चाहिए। अगर आप किसी जर्मन टॉट कोर्स में, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करती, फिर डेफिनेटली अगर कोई कोर्स आप ऐसा चूज करते हो जर्मन में, या फिर आपका B1 या B2 जर्मन लाजमी होनी चाहिए, और ये जर्मन लैंग्वेज के अपने जो टेस्ट होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर का ये है कि इसके लिए ये फर्दर उन्होंने चीजें बताई हुई हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर इसका एक्चुअली इस तरह से होता है कि अभी हमने एक इधर PDF ओपन किया था। आप जब इसकी वेबसाइट पर जाओगे ना, इसी इसी तरह जहां पर इन्होंने बाकी चीजें मेंशन की हुई हैं, उधर आपको इसी तरह से एक ओवरऑल PDF मिल जाता है डे स्कॉलरशिप के हवाले से। उस जो PDF के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, मैंने अपना एक कोर्स चूज करना है और मैंने उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि जी ये ओवरऑल डोमेन्स हैं जो जिनको डे इपोस फंड देता है। जैसे मैंने पहले बताया, डे इपोस वन टाइप ऑफ डे की फंडिंग है।
DRDA ऑलमोस्ट पाकिस्तान के लिए 15 अदर प्रोग्राम्स में भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं सारों को कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ एक किसी को चूज करूंगी अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर है जी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट, ये सारी टेबल ऑफ कंटेंट है, आप आगे फर्दर पढ़ सकते हो। ये फोटोग्रामेट्री है, फर्दर है, काफी सारे इसके अंदर प्रोग्राम्स आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से रैंडमली पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी पेज 59 पर हमें ये इसके बारे में फर्दर डिटेल्स मिलेगी। ये सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ये पेज 59 पर सिंपल इसके बारे में उन्होंने A to Z सब कुछ इसे एक PDF के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कोर्स कितने टाइम का होगा। ये 24 मंथ का है, इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, ये मॉड्यूल सारे लिखे हुए हैं। इन मॉड्यूल को देखकर एक्चुअली आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर ये कोर्स जो है ये मेरे लिए ठीक है भी है या नहीं है। अगर आपने इसी से रेलिवेंट आपको बेसिक्स आपके प्रीवियस बैचलर्स के कोर्स में है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए, या फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस आपके पास ऐसा है जो कि इससे मिलता है, तो आप इसे चूज कर सकते हो। फिर ये इन्होंने उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट बता दी है कि आपके पास ये डिग्री लाजमी होनी चाहिए, साइंस और इंजीनियरिंग। फिर आपने टॉफल या फिर आइट्स में आपका मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए, इसकी ड्यूरेशन क्या है। और यहाँ पर आ जाती है एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर DRDA स्कॉलरशिप। इसकी डेडलाइन है 15 अक्टूबर को, और अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए 15 जनवरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं डेडलाइन क्या है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेडलाइन ये सिर्फ इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए डेडलाइन है। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी और कोर्स के ऊपर जाएंगे, मैं सेकंड कोर्स यहाँ पर खोलती हूँ, तो इस पर अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन इसकी भी 15 अक्टूबर है। बट बहुत सारे जो हैं हो सकता है उन हर एक कोर्स का प्रोसीजर भी अलग होता है और डेडलाइन भी अपनी अपनी होती है। कुछ में कुछ एक बेस लाइन लाइक अक्टूबर जिस तरह से अभी हमें, बट बहुत सारों में आपको हो सकता है इसमें से किसी किसी में थोड़ा सा अर्ली स्कॉलरशिप की डेडलाइन हो। इसके साथ ही अगर आपने फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आपको उससे कोई भी आपको क्यूरी, आप सिंपल इधर यूनिवर्सिटी के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है आप उधर जाकर उनसे अपनी क्यूरी जो भी आप डिस्कस कर सकते हो। अब फिर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज वगैरह करके पूछते हैं अप्लाई कहाँ करना है, मैं नहीं समझ में आ रहा। तो ये सिंपल इसी एक PDF के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, ये सामने इन्होंने लिंक दिया हुआ है। फिर ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन डिटेल लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये इन्होंने इस कोर्स के लिए यहाँ पर मेंशन की हुई है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और अप्लाई कैसे करना है। फॉर दैट एप्लीकेंट्स प्लीज चेक द वेबसाइट ऑफ DRDA, मेक श्योर टू हैंड इन रिक्वायर्ड एप्लीकेंट मस्ट हैव सक्सेसफुली। सो इस तरह से एक्चुअली ये वर्क करता है कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस है ये सारा मिलेगा। आपने अप्लाई कहाँ पर करना है ये इन्होंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। यूनी असिस्ट है, यूनी असिस्ट भी एक अच्छा कोर्स चूज किया मैंने। यूनी असिस्ट एक्चुअली दो तरह से आप जर्मनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इवन सेल्फ फाइनेंस के लिए भी सेम ही प्रोसीजर होता है। एक तो सेल्फ फाइनेंस में ये तरीका होता है कि मतलब आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ने एक इनका ओवरऑल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, उसे यूनी असिस्ट कहा जाता है। जिस तरह के इस कोर्स में भी इन्होंने कहा है कि यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करें। यूनी असिस्ट आप अपने वो आपको बताएगा जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की, आपके बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, सारी चीजें आप यूनी असिस्ट को दोगे। यूनी असिस्ट यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आपके डॉक्यूमेंट की असेसमेंट करेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। हर कोर्स के लिए नहीं होता, बट मैक्सिमम लाइक ऑलमोस्ट 60-70% जो जर्मनी में कोर्सेज होते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस पर भी करती हो, वो कहते हैं आप यूनी असिस्ट पर अप्लाई करो। इसकी वन टाइम फी होती है ऑलमोस्ट 70 to 80 यूरो, वो आपने वन टाइम जस्ट देनी होती है। और सिंपल आप इधर लॉग इन वगैरह कर मैं एक बार दोबारा ओपन कर देती हूँ। आप सिंपल उस जगह पे लॉग इन कर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। योर एक्सेस टू, तो इस पर ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की होगी। आप सिंपल अपना इधर लॉग इन करोगे, माई असिस्ट पर आप अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। आपको पास सारे ऑप्शन देगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, और सिंपल 3-4 प्रोसीजर में स्टेप्स में आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो पुट ऑन हो जाएगी। तो ये मैंने आपके साथ सिंपल वन कोर्स की डिटेल्स मेंशन की हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल इस तरह से अभी ये जर्मन में आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है।
कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो जर्मनी के लिए, इटली के लिए, अगर वो इंग्लिश में नहीं है, आप सिंपल लेफ्ट साइड पे कर्सर को क्लिक करके आप उसे इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सिंपल ये है कि इधर आप 1 बाय 1 आप अप्लाई करना, तो मतलब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो, जब मैंने भी शुरू किया था तो आपको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप थोड़ा टाइम लगाते हो, इवन आपको यूट्यूब पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो मिल जाएगा। सो माई पॉइंट इज जस्ट दिस कि आपको वो पाथवे जो है आपके जेहन में क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने एक प्रोग्राम का आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है, एंड डेफिनेटली और कोई भी आपका आपकी डिग्री के रेलिवेंट, आपका पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप सिंपल उसी जो पीडीएफ मैंने ओपन किया था उस पीडीएफ में सिंपल आप उस जगह पर जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि जी और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। सो इसी तरह से आपका XYZ कोई भी आपका एयर क्वालिटी कंट्रोल में आपका इंटरेस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट, प्रोसीजर जो है अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी चीजें आपको सिंपल, ये एंट्री रिक्वायरमेंट, ये हर एक कोर्स में सिंपल है। ये डार्ट ने बहुत स्मूथ प्रोसीजर इसका मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन डेडलाइन, अब इसकी डेडलाइन क्या है, बिटवीन 15 नवंबर टू 15 फेब जो है वो मेंशन है। लाइकवाइज अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पर सेपरेट इसका अपना एक अलग लिंक होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, हर एक का अपना अपना प्लेटफॉर्म होगा। आपने सिंपल इधर से देखना है, उस कोर्स को आप 2-3 दफा पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, जो नॉर्मली डेफिनेटली आपका कोर्स कोई भी हो सकता है, बट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें डे के लिए ओवरऑल हमें एक तो चाहिए होता है पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले चेकलिस्ट चाहिए होती है। चेकलिस्ट में सिंपल उन्होंने ये मेंशन किया होता है कि आप ये, बल्कि आपको इवन डार्ट की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियली मिल जाएगी, जब हम ये इस जगह पर ये डार्ट पोस्ट का जो हमने सबसे पहले ओपन किया हुआ था, इसी जगह पर आपको ये चेकलिस्ट मिल जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। सेकंड पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका नाम पूछेंगे, आपने प्रीवियस कहाँ से पढ़ा, ये सारी चीजें हैं। फिर CV, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, और वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सबसे रिसेंट एक्सपीरियंस या रिसेंट स्टडी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये यूरोपास का आपको शायद आइडिया होगा, यूरोप में आप किसी भी जगह पे अप्लाई करते हो तो ये यूरोपास एक ओवरऑल वेबसाइट होती है सिंपल। इसका भी यही प्रोसीजर, आप इस पर लॉग इन करके एक दफा अपना बना लोगे अपनी CV। यूरोपास का अपना एक यूनिफाइड टेम्पलेट होता है, ये नहीं कि आप रैंडमली कोई भी वर्ड में बनाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन है, इस पर मैं सेपरेटली भी बात करूंगी। और डे में आप मैक्सिमम, आप फॉर एग्जांपल डार्ट पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसे मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन के साथ दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। और बेटर है कि रेलिवेंट, आपके फील्ड रेलिवेंट या जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइकवाइज आपके पास आइट्स होना चाहिए, और फर्दर जो आपने जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं वो आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए अगर आप HEC से टेस्ट करा लो, अच्छा है, बहरहाल इतना ज्यादा मसला नहीं है। इंडिया और चाइना के लिए उनका एक सेपरेट सिस्टम होता है, APS सर्टिफिकेशन। तो ये एक्चुअली कहने को ये 6 to 7 या शायद हार्डली 5-6 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप अप्लाई करो, आप हमेशा अपने जेहन में 1 to 2 मंथ्स अर्लियर अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें उन पर काम करना शुरू कर दो। बाकी चीजें इतना टाइम नहीं लेती, बट डेफिनेटली कोई भी चीज अगर आप चाहते हो कि वो क्वालिटी की हो तो वो टाइम लेती ही लेती है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो लेटर ऑफ मोटिवेशन मुझे लिखने पर मोर देन 1 मंथ लगा था, और लेटर ऑफ मोटिवेशन टोटल 2 पेजेस का होता है। सो इट्स अप टू यू, जितनी आप एफर्ट पुट करोगे उतनी आपको उसका रिटर्न मिलेगा। लाइकवाइज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और ये मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद फिर आ जाता है लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ऑलमोस्ट डिफाइनिंग थिंग है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप बताते हो कि जी मैंने पास्ट में क्या किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने पास्ट में, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पास्ट में साइकोलॉजी में मेरा बैचलर्स है, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि मैंने जिसमें अप्लाई किया है वो है पब्लिक हेल्थ का, विच हैज नथिंग टू डू विद साइकोलॉजी। तो
इसमें अब आपने रेलिवेंस बिल्ड करनी है, दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट लेटर मोटिवेशन, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपने सबसे पहले तो अपना पास्ट बताना है कि जी ठीक है मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, बट आपने उसमें लिंक होना चाहिए प्रेजेंट में आप अभी क्या कर रहे हो। प्रेजेंट मीन्स कि आप अभी जॉब वगैरह आप जो कर रहे हो वो वेदर इट इज रेलिवेंट टू योर चूजन सब्जेक्ट, चूजन पाथवे। और थर्ड चीज जो आ जाती है फ्यूचर में, तो अगर आपने बताया कि जी मैंने बैचलर्स इसमें किया है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक रिव्यू किया था, बहुत रेलिवेंसी थी उनकी, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में ही था। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी जो जॉब कर रही हूँ वो भी ऑलमोस्ट GIZ रेलिवेंट कोई थी, उसमें मैं इसी चीज पर काम कर रही हूँ, और आई बिलीव कि अगर मैं जर्मनी से पढ़ूंगी तो मेरी ये स्किल जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर मैं अपने केस में बात करूं, मेरे आल्दो साइकोलॉजी का एज डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ से इतना नहीं स्ट्रांगली बनता कनेक्शन, बट मैंने जब अप्लाई किया था मैंने उस कोर्स के मॉड्यूल्स जो होते हैं वो बड़ा जरूरी होता है उसे पढ़ना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इधर भी मेंशन किया था आपके साथ, इन्होंने बताया होगा जी कोर्स का फोकस किस किस चीज के ऊपर है। ये सारी चीजें जो मेंशन की है ना उन्होंने, कि हम चाहते हैं इन्वायरमेंट पर फोकस होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी कंट्रोल पर काम होगा, लैब क्लासेस होंगी, इंटर्नशिप होगी, प्रोजेक्ट होगा। इसमें इन्होंने टारगेट ग्रुप जो है वो मेंशन किया, बट पार्टिकुलर समटाइम उन्होंने इससे पहले हमने एक कोर्स देखा था उसमें उन्होंने पार्टिकुलरली मेंशन किया था कि आपके कोर्सेज कौन कौन से होंगे। ये इसमें इन्होंने ना बड़ा डिटेल मेंशन किया था कि इसमें कोर्सेज कौन कौन से होंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में उन्होंने मेंशन किया था कि जी हमारे जो कोर्सेज हैं चूजन, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि मेंटल हेल्थ, वल्नरेबल जो कम्युनिटीज हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट आता है, लाइकवाइज कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इन शॉर्ट मेरे प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप वल्नरेबल कम्युनिटीज को किस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ऑल्दो कि अगर मैं साइकोलॉजी का बैचलर देखूं तो उसका डायरेक्टली ऐसा लिंक नहीं था, बट आई वाज डूइंग वर्क इन सम एनजीओज, और उसमें मेरा हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और इन चीज़ों पर काम था। तो उस पर लिंक क्रिएट करना कि जी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मैं अपना वैसे LOM भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आई डिड नॉट हैव एनी इनसिक्योरिटीज। ये मैंने मेरा जो अपना आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले का लिखा हुआ है। तो उसमें ये चीज़ें पहले मैंने शॉर्ट से अपने बारे में बताया कि जी मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैंने ये मेरे मेजर थीसिस था, उसमें मैंने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने वो बता दिया जी। कम्युनिटी साइकोलॉजी डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बट आपने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में सिर्फ उस चीज़ पर एम्फोसाइज करना है जिससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। फिर इसके अलावा मैंने अपनी ड्यूरिंग एकेडमिक्स मैंने कुछ पब्लिकेशन थी और भी कुछ थी, बट एक दो जो कि मोस्ट रेलिवेंट थी मैंने सिर्फ उन्हें मेंशन किया कि जी मेरा माइग्रेंट कम्युनिटीज जो हैं अफगान चिल्ड्रन उनकी साइको सोशल हेल्थ पर मेरा काम है। फिर इसके अलावा मैंने कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल क्रिएट किया था वो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज पर था। तो उस तरह से मैंने वो सारी चीज़ें, फिर सबसे ज़्यादा मेरा जो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था वो मैं NGO में वर्क कर रही थी एज वाइस प्रेसिडेंट। तो उसमें मेरा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम था। तो वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की। इनिशियल मैंने अपना हल्का सा प्रीवियस बैकग्राउंड बता दिया, मैंने ये पढ़ा है। उसके बाद करंटली मैं NGO में जॉब कर रही हूँ, उसमें मेरा काम ये है कि जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं पार्टिकुलरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको उनके लिए हम हेल्थ केयर को किस तरह से एक्सेसिबल कर सकते हैं, एजुकेशन को किस तरह से एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो वो सारा मैंने मेंशन किया कि जी मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। और जो आपका कोर्स है वो भी यही बताता है कि अगर आपके कोर्स को पढ़ने के बाद मैं ये काम ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकती हूँ, मैं कम्युनिटी के अंदर इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, और जो मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उन्हें मैं ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये एक्चुअली LOM जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक तो इसमें रेलिवेंस लाजमी होनी चाहिए, आप जिस चीज़ में अप्लाई कर रहे हो, जिस चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो वही आपको डेफिनेटली, आप अगर फॉर एग्जांपल हम कहेंगे आप अप्लाई कर रहे हो 24-25 साल या 26 साल की एज में, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हुआ होगा, बट आपने वो सब नहीं बताना है, और ये भी नहीं कि कुछ भी बता देना है। सिर्फ आप यूं कह लो कि सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इज इन्वॉल्व इन दिस, कि आपने सिर्फ वो चीज उन्हें दिखानी है जो कि रेलिवेंसी बिल्ड कर रही है आपके लिए। अब मैंने तो और भी बहुत कुछ किया था, बट डेफिनेटली मैं अगर उस चीजों पे एम्फोसाइज करती हूँ, माइट पॉसिबल कि वो मैं सोचूंगी यार मैंने तो 2 साल लाइफ की इस चीज को भी दी हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट आई एम
going to pursue further. So important चीज ये है कि आपने वो 26 सालों में से वो बाकी सारा 22-23 जो भी आपकी एज है वो सारा निकाल देना है। आपने सिर्फ वो चीजें देखनी है कि जो कोई 22 सालों में से सिर्फ 2 साल काम किए हैं जिसमें कोई रेलिवेंसी बिल्ड हो रही है, आप वो चीज बताओ, थोड़ा बताओ, अच्छा बताओ, रेलिवेंसी होनी चाहिए, एक स्मूथनेस आनी चाहिए कि मैंने पहले ये किया। बट आपको एप्लीकेशन को पढ़ के एक चीज मिलनी चाहिए कि आपने जो कुछ किया लाइफ में कॉन्शियसली अपनी एफर्ट से किया। ऐसा नहीं है कि इधर की हवा थी तो इस तरफ चले गए, इधर की थी और कुछ मिला नहीं तो फिर मैंने कहा लिया। और एलओएम में कभी भी ये मत लिखें कि आई एम सो पुअर, आई कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, वो जो चीज आपके अंदर देखना चाह रहे हैं, वो आपके अंदर लीडरशिप देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आपने लाइफ में कितनी स्ट्रोंगनेस के साथ अपनी लाइफ को लेकर चले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप मेंशन करें एलओएम में। सेकंड चीज आ जाती है, अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स अभी कर रहे हैं, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने इतना अर्ली इसे सोचना शुरू कर दिया। अब आपको फायदा ये होना चाहिए अर्ली एक्सपोजर का कि आप अभी से सर्च करो कि जी ये डे के ये कोर्सेज हैं, मेरे से रेलिवेंट ये वाला कोर्स बनता है, और आप अभी से 4 साल पहले से अपनी प्लानिंग शुरू कर दो कि जी मैंने इंटरनेशनल हेल्थ में अप्लाई करना है, इनके ये कोर्स मॉड्यूल हैं, इनकी सर्टिफिकेशन आप ले लो। आप इनकी ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड, कोर्सेरा, बहुत सारी जगहों से ऑनलाइन आपकी ऑप्शन है। अगर आपने वो कोर्स खुद नहीं पढ़े हुए तो आप बता सकते हो कि जी मतलब मेरी बहुत सारी जगहों पर मैंने ये चीज मेंशन की थी कि जी मैं लाइक माय लाइफ वाज गोइंग स्मूथली एंड देन वंस आई मेट समवन हु वाज डिसेबल्ड and then my interest shift towards the vulnerable communities and then I thought that I will serve them, so like this। तो आपने अगर लाइफ में डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। लाइफ की किसी भी स्टेज पर आप खड़े हो, आप उस स्टेज से अपना करियर पाथ डिसाइड कर सकते हो वेरी इजीली। आपको अगर नहीं पता आप सीख सकते हो, आपके पास तमाम ऑनलाइन इस टाइम पर एप्लीकेशन मौजूद है, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, आप सीवी में डालो, आप उसकी बेस पर बिल्ड करो कि जी मैंने ये पढ़ा हुआ है और ये मेरा रेलिवेंट स्किल सेट है। अभी से आप उन जॉब्स में अप्लाई करो जो कि आपको लगता है कि ये इन फ्यूचर मैंने करना है, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, वेदर इट्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, इट्स पब्लिक हेल्थ, वॉट एवर इट इज। तो वो बात अगर आप अपने उस एप्लीकेशन के ऊपर 2-3 साल पहले से काम शुरू कर दोगे, अभी से आप देखोगे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन डेफिनेटली आप कभी भी राइटिंग करते हो उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती ही होती है। इट्स लाइक हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं या राइटिंग स्किल कहते हैं, बट आप कितनी ही मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप कितना ही उन्हें बता सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो, डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग टू इंप्रेस देम। तो आप अपना जो पाथ है वो 2 साल 3 साल पहले से आप देखना शुरू कर सकते हो कि इसमें अप्लाई करना है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। एक और बात ये हो सकता है, आप लिंक्डइन पर अपने कोर्स से रेलिवेंट जो लोग हैं आप उनकी प्रोफाइल्स देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल किसी ने इन्वायरमेंट एयर क्वालिटी कंट्रोल में अप्लाई करना है तो प्रीवियस जिन स्टूडेंट ने इसमें अप्लाई किया हुआ उनकी प्रोफाइल किस तरह की थी, उनका किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस था, तो आप उस तरह का वो पाथ फॉलो कर सकते हो। और स्कॉलरशिप डेफिनेटली आप विन कर सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन डेफिनेटली हम उस चीज को इलेबोरेट करते करते उस पर फर्दर बात कर सकते हैं। So from my side, floor is yours. Anyone have any query, any question, you can ask me. ऑर्गेनाइजर्स काइंडली आप अनम्यूट अगर कर दें। मोहम्मद उस्मान और दुआ शबीर ने रेस हैंड किया है, मोहम्मद मैम अभी सरफराज वो नहीं। चैट के अंदर क्वेश्चंस करें तो हाँ ओके आप ओके, वहां मुझे से लगा वो देख लें। शायद वर्बली होगा। वर्बली कर ले तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है। लेटर ऑफ रिकमेंड इफ यू एक्सप्लेन टू मी, ओके इफ यू रिसीव अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप डू आई स्टिल नीड अ ब्लॉक अमाउंट, या मैं भूल गई थी। अच्छा पॉइंट रेस किया है मैम, माइक ओपन करवा दीजिए। तो वैसे अगर पॉसिबल हो माइक भी ओपन कर दें, ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है ऑडियंस के साथ। अच्छा Ma'am, I सबसे am पहले opening the mic for people, okay? They will ask questions verbally. श्योर
अच्छा, इधर किसी ने पूछा है ब्लॉक अमाउंट का। अगर आप स्कॉलरशिप पर आते हो ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पर आते हो फिर आपको चाहिए होती है। तो स्कॉलरशिप एक्चुअली आपको वो लेटर देती है। और मजे की बात यह है कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अगर आप वीजे के लिए अप्लाई करते हो, इट नॉर्मली take around 1 year, sometimes 6 months to 1 year. But if you are DAD scholarship holder, like I got visa in 24 hour, वो आपका तमाम डॉक्यूमेंटेशन, आपके तमाम फाइनेंस, आपका आने जाने का तमाम एक्सपेंस, आपका यहाँ लिविंग एक्सपेंस, आपकी यूनिवर्सिटी का एवरीथिंग इज कवर्ड। और वो एम्बेसी को अपना सपोर्ट लेटर भेज देते हैं कि जी ये स्टूडेंट, हमारी स्कॉलरशिप लेटर के ऊपर मेंशन होता है यू आर अ गेस्ट इन अवर कंट्री। और आपको प्रॉपर गेस्ट वाला ट्रीटमेंट मिलता है वेदर यू गो इनटू एम्बेसी, वेयर एवर यू गो। तो आपको फील आती है एक अच्छे वाली स्कॉलरशिप मिलने के बाद। तो इन शॉर्ट ये कि ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए होती। बट अगर सेल्फ फाइनेंस पर आना चाहो तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज ब्लॉक अमाउंट है और सेकंड एडमिशन आपके पास होना चाहिए। और आप सबको आई होप आइडिया होगा कि जर्मनी में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री होती है। 200-300-1500 यूरो इस तरह से फीस होती है एज कम्पेयर टू यूके। यूके में फॉर एग्जांपल 10,000, 15,000, 20,000। लाइकवाइज कनाडा ने अभी पोस्ट वर्क वीजा खत्म कर दिया है। तो इस तरह से है। और स्कॉलरशिप पर आप 1 साल 2 साल के लिए आते हो, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है 18 मंथ्स वर्क परमिट का। आप उसमें वर्क कर सकते हो, अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाती है, आप वीजा एक्सटेंड कर सकते हो। सो लाइकवाइज इट वर्क। हाँ, लेटर ऑफ मोहम्मद रिकमेंडेशन। उस्मान, आपका या माइक एबल है, आप बोल सकते हैं। अच्छा गाइड किया। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम 2 से 3 स्कॉलरशिप्स को देख रहे होते हैं और उसमें हर स्कॉलरशिप में 2-3 यूनिवर्सिटी होती हैं और 2-3 कोर्स होते हैं, तो इन सब को इकट्ठा किस तरह से मैनेज किया जाए? कुछ अगर आप टिप्स वगैरह बता दें तो। 2-3 स्कॉलरशिप यू मीन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल वन इन जर्मनी, वन में बी इरास्मस मुंडस और इन यूके, ये आप पूछना चाह जी रहे जी हैं? बिल्कुल मैम। हाँ, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट जी चीज मैम। आपने याद किया। जी जी, मैं समझ गई आपकी बात। इसमें यह है कि डेफिनेटली आई वुड आल्सो रिकमेंड कि आप 2-3 को ही बेस लाइन पे रखो। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप उन्हें मैनेज किस तरह से कर सकते हो कि 2-3 जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इरास्मस मुंडस की बात करें, उसकी डेडलाइन जब ये खत्म होगी ना, डे ने खत्म होना है अक्टूबर या नवंबर में, इरास्मस मुंडस की डेडलाइन तब स्टार्ट होगी। तो लिटिल बिट हार्डवर्क जरूर चाहिए, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगी। बट फॉर्चुनेटली बहुत सारों की डेडलाइन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा पहले से वर्क शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल अगर उसकी अक्टूबर में है तो आप अभी से अगस्त में डे पे काम शुरू कर दो। लाइकवाइज आप अपना, लाजमी नहीं है कि अक्टूबर में, आप उससे पहले भी सबमिट करा दो। आप अगस्त में अपने डॉक्यूमेंटेशन डे के लिए अप्लाई कर दो। फॉर इरास्मस मुंडस मैंने यूं किया होता था कि आप वर्ड पर या एक्सेल पर पूरा एक टेबल बनाया होता था और उस पर लिखा होता था कि इरास्मस मुंडस की ये है, इसकी ये डेडलाइन है और इसका ये लिंक है, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो वर्ड या एक्सेल पर एक पूरा डॉक्यूमेंट बना होता था और फिर उसमें जिसकी डेडलाइन सबसे अर्ली होती थी उस पर सबसे पहले काम करते थे। लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हर एक के लिए आई वुड प्रेफर कि अलग अलग होना चाहिए। एक ही लेटर ऑफ मोटिवेशन कभी भी ना करो। जितना उसे कस्टमाइज कर सकते हो, जो उसने सब्जेक्ट किए हैं, आप बताओ कि बस वही सब्जेक्ट है जो मैंने लाइफ में पढ़ा और यही मेरा लाइफ का ओवरऑल गोल है। तो हर एक के लिए सीवी दोबारा से बनाओ, हर एक के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन। हार्डवर्क है, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। यू हैव टू डू दिस। एंड इन केस इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प, मे बी यू कैन अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह के लिए, अगर आपको रिव्यू करने के लिए हेल्प चाहिए हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Dua, now you can ask. Assalamu alaikum, ma'am. Hope you are वालेकुम doing सलाम। well. मेरा क्वेश्चन था, मैंने अभी सारा रिसर्च वगैरह स्टार्ट किया है स्कॉलरशिप्स पे ना। आई जस्ट रिसेंटली गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम पाक ऑस्ट्रिया। बीएस इंग्लिश में मेरी ग्रेजुएशन है, तो मैं डैट स्कॉलरशिप्स देख रही थी। तो उसमें मैंने ना जो स्पेसिफिकली मैं देखती थी, तो उनकी 31 जुलाई को जो मेरे साथ रेलिवेंट थी उनकी डेडलाइन खत्म हो गई। उसमें मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो उसने 4 मुझे और रिसर्च स्कॉलरशिप्स बताई हैं जो कि उसके अंदर कवर होती हैं। पर उसमें यह था कि उसमें जो डार्ट स्कॉलरशिप है उसको मुझे सेपरेटली उसको पोर्टल पे अप्लाई करना है और उसको सेपरेटली करना है। तो इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ओके। जो स्कॉलरशिप आपने देखी है वो एक्चुअली डे हेलमेट है।
वो भी एक है, और वो वाकई उसकी डेडलाइन जो थी वो जुलाई की ही थी, 31 जुलाई की थी। अभी DRD पोस्ट ओपन है मेरा ख्याल है, बट उसमें इंग्लिश से रेलिवेंट कुछ नहीं होगा। और एक्चुअली जी DRD की 5-6 डिफरेंट 5 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 15 है पाकिस्तान के लिए, डिफरेंट उनके प्लेटफॉर्म्स, उनमें अप्लाई करने का तरीका ये सब कुछ अलग अलग होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जब लेटर ऑफ मोटिवेशन देते हो, उन्होंने ये मेंशन किया होता है कि अगर आपने पहले DRD के किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो आपको अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये मेंशन करना पड़ेगा कि जी मैंने इसमें अप्लाई किया, या फिर करंटली मैं प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 3 इसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको इसे समटाइम जस्टिफाई भी करना पड़ता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि एक ही स्कॉलरशिप में, लाइक जिस तरह DRD पोस्ट में आप हार्डली 1 to 2 में ही अप्लाई करो, बहुत में ना करो, ये आपकी एप्लीकेशन वीक कर देता है। विच मीन्स कि आप 4 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर नहीं है अपना पाथ, तो ये एक वीकर इम्पैक्ट देता है। 1-2 दैट मेक सेंस। सो मे बी DRD के लिए आप देख सकते हो 1 या 2 जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बट डेफिनेटली वी हैव अदर ऑप्शन एज वेल। आप बाकी यूरोप वगैरह में देख सकते हो। तो ये है कि जो अप्लाई करने का तरीका है ना, वो इवन कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा, वो विद इन स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम भी डिफर करेगा। तो वो आपको एक्सप्लोर कर ही पता चलेगा। बट ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाजमी रखिएगा। DRD का जो डेटाबेस है वो उसमें रिकॉर्ड रहता है, आपने अगर एक प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया तो ये चीजें स्मूथ रहनी चाहिए। 1-2 में करो मगर फुल एफर्ट के साथ करो फॉर DRD। मे बी यू कैन अप्लाई इन टू अदर एज वेल। और रेलिवेंट एक्सपीरियंस लाजमी देखिएगा, एक्सपीरियंस के बगैर अगर करेंगे तो सिर्फ आप अपनी एप्लीकेशन भी करेंगी और कोई मसला नहीं है। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लेकर दोबारा से अप्लाई करोगे, डेफिनेटली योर एप्लीकेशन वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। So I hope it fulfill what you want to know. yes ma'am, thank you. Welcome. Mohammad Sarfaraz, now you can ask. अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अपनी फील्ड के मुतल्लिक जो रिसर्च होती है वो कितना मैटर करती है। दूसरा कि CGP कितना होना चाहिए कि स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा तीसरा ये है कि हाउस बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या है जर्मनी में, और करिकुलर एक्टिविटीज कितना मैटर करती है। ओके, आपने काफी सारी चीजें पूछ ली हैं, आई होप मुझे भूले ना। करिकुलर एक्टिविटीज डेफिनेटली मैटर करती हैं। करिकुलर एक्टिविटीज में फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी जगह पे कोई लीडिंग, देखो जो भी आपने किया है ना पाकिस्तान में, उन्हें कुछ नहीं पता है। आप उस चीज को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, आप फॉर एग्जांपल बता सकते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप कोई भी गेम खेलते हो, अगर उसमें कभी भी आप टीम के कैप्टन रहे हो, आप किसी भी और सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हो, जिस तरह से अभी ये जो सोसाइटी जो लोग अभी देख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से ये भी आप लीडरशिप क्वालिटी में आता है। तो आप अपनी उन तमाम, आप डिबेटर रहे हो तो आप बता सकते हो कि जी मैं डिबेटर, मैंने विन किया है। मैं अगर स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली इट मैटर्स सो मच। और लाजमी मेंशन करो, आपकी पर्सनालिटी का इस चीज से पता चलता है। आप बता सकते हो कि जी कुछ भी ऐसा था, अगर आपने टीम में प्ले किया, आप बता सकते हो आई एम अ टीम प्लेयर, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे पता है लोगों को कैसे लेकर चलना है, विच इज समथिंग विच इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मैटर। तो जो भी आप कर रहे हो दुनिया में, क्लासरूम इज नॉट बाउंड इन 4 walls। दुनिया में जो भी आपने सीखा, डेफिनेटली इट हैव समथिंग टू डू विद योर स्कॉलरशिप, इट हैज समथिंग टू डू विद योर पर्सनालिटी एज वेल। वो रेलिवेंट है, वो काउंट होगी, उसे बस प्रेजेंट अच्छे से कर लो। सेकेंड थिंग, हाउस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मैट्रिक या फिर FSC के बाद आप पाकिस्तान से क्या, आप किसी भी कंट्री से, आपके पास B1 B2 जर्मन होनी चाहिए, और फिर आप अप्लाई करते हो एक तरह से, जिस तरह से हमारे यहाँ बैचलर्स होता है उस तरह से इनके यहाँ हाउस बिल्डिंग होती है। तो हाउस बिल्डिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग देते हैं वो, फॉर एग्जांपल नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में आप अप्लाई करते हो तो आपको पार्ट टाइम हाफ डे या कुछ वीक के कुछ डेज में पढ़ाएंगे, और वीक के कुछ डेज में आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, और आपको प्रॉपर पे करते हैं अराउंड 1000 euro, विच वुड बी लाइक 3 lakhs इन PKR। तो हाउस बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज है, बस जिस चीज की वजह से पाकिस्तानी बहुत सारे नहीं अप्लाई करते वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज B1 B2 लाजमी चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज है। इवन अगर आपका फ्यूचर में प्लान हो, आपने बैचलर्स यहाँ से कर लिया, आपका ऑलमोस्ट 3 साल का हाउस बिल्डिंग होती है, बहुत सारे में होती है, इवन होटल मैनेजमेंट में, कार रेलिवेंट बहुत सारी फील्ड है, इंजीनियरिंग रेलिवेंट होती हैं। एज लिमिट देख लीजिएगा, और आपके पास B1 B2 होना चाहिए। आप ऑनलाइन खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ एजेंट वगैरह भी करते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप B1 B2 जर्मन सीख कर सिंपली आप खुद अप्लाई करो, आपको प्रॉपर यहाँ आकर फंडिंग मिलेगी,
आपको ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। बट आपके पास मिनिमम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डिग्रीज होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इवन हेल्थ रेलिवेंट जितने भी लोग हैं उनके लिए, अगर आपका नर्सिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो, जितनी देर आप लोग पाकिस्तान में बैठकर रिपीट करके देखोगे कि कहीं हमारा आ जाए, उतनी देर में B1 B2 जर्मन सीख कर आप यहाँ पर आकर अच्छा अपना सीखोगे, और साथ ही आप अपना साथ साथ गवर्नमेंट आपको पे करेगी, और हाउस बिल्डिंग के लिए पैसा भी नहीं चाहिए। और आपने कुछ और पूछा था तो मुझे भूल गया, रिसर्च के बारे मुझे में इतना पूछा याद था कि रिसर्च के बारे में पूछा था कि अपनी फील्ड के हाँ। अंदर अगर बंदे ने की हो तो वो जो फिल्टर आउट करते हैं एप्लीकेंट्स को, तो वो कितना मैटर करती है, और जो CGP है वो कितना होना चाहिए कि बंदे के चांसेस बढ़ या जाते हैं। ओके ओके। रिसर्च डेफिनेटली मैटर करती है, और अगर तो अब जिस तरह मेरी 5-6 पब्लिकेशन थी, बट जिस कोर्स में मैं अप्लाई कर रही थी उससे रेलिवेंट 1-2 थी, उन्हें मैंने थोड़ा ज़्यादा एम्फोसाइज किया, बाकी को मैंने अपनी CV में मेंशन कर दिया। तो डेफिनेटली वो बहुत वैल्यू करता है आपकी एप्लीकेशन को, चूँकि इंटरनेशनली रिसर्च को बहुत वैल्यू दी जाती है, तो इस पर कोई सेकेंड ओपिनियन है ही नहीं, वो डेफिनेटली मैटर करता है। CGPA पर वैसे तो मैंने ड्यूरिंग कन्वर्सेशन भी बताया था कि CGPA अच्छा हो तो अच्छी चीज होती है, बट इट्स जस्ट वन फैक्टर। आप यूं देख लें कि आप कहते हो कि आपके पास एंड पर 100 PKR होना चाहिए, तो उसमें से आप यूं कह लो कि 20 PKR जो हैं आपको मिल रहे हैं रिसर्च से, 20 आपको आपकी एकेडमिक से मिल रहे हैं, 20 आपको आपने प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस किया है, तो इस तरह से मिल रहे हैं। तो माइट पॉसिबल अगर किसी का CGPA कम है, अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको 20 में से 20 मिल गया। बट अगर आपका CGPA कम है, फॉर एग्जांपल 3.1 कुछ इस तरह से है, आपके उसमें नंबर कम आ गए हैं, बट यू हैव टू स्ट्रेंथन इन अदर एरियाज एज वेल। आप अभी अपना रेलिवेंट फील्ड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो, तो हो सकता है उसमें जो आपके 10 नंबर कटे हैं, दूसरे उधर से आप 30 नंबर लेकर वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इतना भी मैटर नहीं करता। मैंने आगे भी बताया था कि मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो प्रॉपर फेल हुए थे अपनी बैचलर्स वगैरह में, 1-2 सब्जेक्ट में उन्होंने रिपीट किया, वो अपीयर हुए, और उनका फील्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस था, उन्होंने शो किया वी हैव द मोटिवेशन, वी नो द राइट पाथ वी वांट टू परस्यू। तो ये है कि 2.967 पर भी, बट आपके अदर एरिया स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। Thank you, ma'am. Nimra, you can ask and also be concise. There are a lot of questions, so थोड़ा ध्यान से सारे questions करें. अस्सलाम वालेकुम। निम्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और मेरा GPA जो है वो 3.5 है। सो आई एम प्लानिंग कि मैं इंशाल्लाह डार्ट स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करूँगी। इसके अलावा मैं वॉलंटियरिंग भी मैंने की हुई है, इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी से कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूँ कि मैं डार्ट विन कर सकूँ। उसमें ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप अभी से वॉलंटियर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। पहले तो ये है कि आपको पता होगा कि आपकी जो फील्ड है सोशियोलॉजी, उससे रेलिवेंट मास्टर्स लेवल पर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको पता चल गया कि जी ये आपका फ्यूचर इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में है। उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप जितना गेन कर सकते हो, मल्टीपल एक्सपीरियंस जितना गेन कर सकते हो। अभी स्टूडेंट हो, आपके पास जब आप लोगों के पास समर ब्रेक होती है, 3 मंथ्स की आपके पास ब्रेक होती है, उसमें आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके काम से रेलिवेंट हो, आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंटरनेशनल अगर आपको कभी सम टाइम होता है वॉलंटियर, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, आप वो करो। तो ये है कि इन शॉर्ट जितनी रेलिवेंसी आप अपनी CV के अंदर, अपने काम के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, आप करो, एंड डेफिनेटली यू विल विन इट। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मिस ये पूछना चाह रहा था कि सेल्फ फाइनेंस पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मिनिमम ब्लॉक अमाउंट क्या होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। प्लस अगर हम सेल्फ फाइनेंस पे आ जाते हैं तो वो ब्लॉक अमाउंट जो है वो 1 ईयर के लिए हम शो करवाते हैं, नेक्स्ट ईयर भी हमें वो जो है मैनेज करना होता है, या वहीं पे ही जॉब चांसेस हमें जो है अवेल हो जाते हैं। काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी सही है।
मिनिमम जो होती है आपके पास जर्मन गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1 मंथ का आपका जो एक्सपेंस होता है वो अराउंड 992 यूरो होता है। तो आप 1 ईयर की जब करते हो तो वो 992 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाता है, विच बिकम अराउंड 12,000 यूरो। तो वो 1 ईयर की ही होगी। 1 ईयर के बाद जब आपने वीजा एक्सटेंड करना है, दो चीजें आप दे सकते हो, या तो आप उन्हें ब्लॉक अमाउंट दे सकते हो, डेफिनेटली अगेन 12,000 यूरो। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास उस टाइम पे कोई जॉब मिल जाती है और आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि वो आपको मंथली 1,000 यूरो या जितना भी वो देगा, विच मीन्स दे जस्ट वांट टू नो कि आप अपने फाइनेंस किसी तरह से उठा सकते हो। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, आप जॉब का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिखा सकते हो। अगर जॉब का नहीं मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू पे इट अगेन एंड यू कैन डेफिनेटली अर्न। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं दोबारा से अर्न करने का। या फिर अगर आपकी जॉब ऐसी है जो आपको कम पे कर रही है, स्टूडेंट जॉब है, तो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट शो करके और हाफ में भी 4,000 5,000 यूरो इस तरह से अप्लाई करके, तो वो इस तरह से भी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है। और मिस सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी इंग्लिश कोर्स में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मेरी डिग्री बीएस फिजिक्स है, तो अगर मैं इंग्लिश कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे आइल्स चाहिए, वो तो रिक्वायर्ड है, उसके साथ B1 लैंग्वेज भी मुझे चाहिए होगी? काइंडली थोड़ा सा ये बताइएगा। नॉर्मली नहीं चाहिए होती है, अगर आपका इंग्लिश कोर्स है तो इंग्लिश ही चाहिए, बट फिर भी क्लैरिफाई करने के लिए आप अपना पार्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसका पोर्टल चेक कर सकते हो। आई एम 99% श्योर नहीं चाहिए होती है, बट आई वुड रिकमेंड कोई भी अगर पार्टिकुलरली सेल्फ फाइनेंस से जर्मन लैंग्वेज सीकर आए। आप वर्क स्टूडेंट जॉब नहीं कर सकते हो, चूंकि हर जगह पे लैंग्वेज चाहिए, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती होती। तो इन शॉर्ट ये कि कंपल्सरी नहीं होती बट ऑप्शनल होती है एंड इट वुड बी गुड फॉर यू। Okay, ma'am. Mohammad Farhan, you can ask. ये आप लोग अटेंडेंस भी ले रहे हो? यूनिवर्सिटी का याद करवा दिया है। यस मैम, वो लिंक शेयर किया हुआ है तो फॉर्म फिल करेंगे तो सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू होंगे। सर्टिफिकेट ले लो, स्कॉलरशिप मिले ना मिले। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Uh, First of all, ma'am, thank you for sharing such important information. मेरा एक क्वेश्चन था कि रिसर्च प्रपोजल के बारे में, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और बैचलर लेवल पे रिसर्च स्टूडेंट्स से नहीं करवाती, ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। तो हम किस तरह अपना रिसर्च प्रपोजल जो है ऑर्गेनाइज करें और मतलब मैक्सिमम चांसेस हों कि हम स्कॉलरशिप क्लेम कर सकें और अपने रिसर्च प्रपोजल की बिहाफ पे। मोहम्मद फरहान, आपने मास्टर्स के लिए पूछ रहे हैं, पीएचडी के लिए? मास्टर के लिए मैम, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है ओके। बैचलर में, और मास्टर के लिए मैं पूछ रहा हूँ। करंटली मैंने क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं एज अ काम भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें पहली चीज तो ये है कि आप रीचेक कर लीजिएगा। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट 80-90% तक जो जर्नी में मास्टर लेवल पर कोर्सेज हैं वो रिसर्च प्रपोजल आपसे पहले नहीं मांगते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, 1 ईयर पढ़ते हो, सेकंड ईयर में आपने रिसर्च करनी होती है, तब तक आपको यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ डेफिनेटली गाइड कर देती है। बट सेकेंडली, वैसे तो आई एम श्योर जर्मनी नहीं मांगता है, यूके में मांगते हैं, कनाडा वगैरह में मांगते हैं, बट डेफिनेटली इफ समवन आस्क तो पहले तो कोशिश करें 1-2 रिसर्च का एक्सपीरियंस ले लें। मे बी आप अपने सुपरवाइजर, जब रिसर्च ही नहीं यूनिवर्सिटी ने कराई, कहाँ से आएंगे? मे बी आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से, सीनियर से, किसी से कोलैबोरेट कर सकते हो एज सेकंड थर्ड ऑथर। तो 1-2 हो जाएं तो अच्छी चीज़ है। अगर वो नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च में, और आप अपनी सीवी में पुट ऑन कर सकते हो पहले के जी मेरा रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। थर्डली, ठीक। जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, उसमें अप्रोच बहुत मैटर करती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रोच डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यहाँ पर। अप्रोच होती है कि आप रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आप वाकई अपनी फील्ड, आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड है, उससे रेलिवेंट आप बताते हो कि जी कोई वाकई रियल सोसाइटी का प्रॉब्लम है और आप अपनी रिसर्च के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सोसाइटी में सोल्यूशन पेश कर रहे हो, एंड इट शुड बी लिटिल बिट न्यू। तो आई पर्सनली थिंक दैट योर चांसेस विल इंक्रीज। और रिसर्च प्रपोजल बहुत छोटा सा, ये लोग सिर्फ आइडिया देखते हैं, आपका आइडिया कितना यूनिक है, दैट ऑल मैटर। और नॉर्मली चाहिए नहीं होता वैसे मास्टर्स लेवल पर। नेक्स्ट प्लीज, तनवीर अहमद। No, Satakshi Negi, I guess so, yes.
Assalamualaikum, ma'am. Ma'am, I वालेकुम wanted सलाम। to, ma'am, I wanted to ask कि सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या होगी DART scholarship secure करने के लिए? Like, is it the CGPA? Is it practical work experience? Is it altogether something else? Like, what's the most important thing that you need to have? Am I audible? Okay. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप अप्लाई करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखा है जो ये सोचते रहते हैं और वो फिर अप्लाई नहीं करते हैं। सेकंड चीज ये है कि हर एक का पाथ डिफरेंट होता है। नॉट पॉसिबल कि जिन स्कॉलरशिप में या जिनमें मेरा हो गया या जिनमें मेरा नहीं हुआ वो पाथ आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपका अपना एक पैटर्न होगा, आपका अपनी एक लक होगी, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। तो कभी भी डिसअपॉइंट ना हो कभी भी किसी की बात सुनकर कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। You are the creator of your destiny. You have done whatsoever in your life. Definitely you are fabulous in that. इम्पोर्टेंट सब कुछ होता है अगर सच्ची बात बताऊं, बट फिर भी अगर बहुत ज्यादा पूछें कि मुझे लगता है रेलिवेंस आपका ओवरऑल जो भी आपने लाइफ में किया और जिस तरह से आप उसे प्रेजेंट करते हो, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना रेलिवेंट है, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव लर्न प्रीवियसली, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर। सो आई पर्सनली थिंक रेलिवेंस इन वर्क एक्सपीरियंस it's a defining characteristics for your scholarship. Ma'am, one more question, please. Actually, मैं MSc biology की student हूँ, like MSc molecular human genetics कर रही हूँ, और मैंने सिर्फ एक बार लाइफ में summer internship करी थी, तो मेरे पास ज़्यादा work experience नहीं है. And as of now, मेरा CGPA भी काफी low है, it is 6.06 out of 10. और मेरा जितना भी co-curricular है, मैम, मैंने English में किया है, like poetry and all writing and stuff. मेरा science related उतना co-curricular नहीं है. So, कोई chance है कि मेरा DRD में हो जाएगा? अच्छा, and I have a diploma in German also. So, do I stand a chance based on these parameters or do I not? Definitely you have chance and you will get it. Point is this के लाइफ में जिस भी स्टेज पे आप सोचते हो कि अब मैंने ये करना है, आप उस स्टेज पर दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो अपनी चीजें। तो फॉर एग्जांपल आपको आज पहले तो ये कि आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपका इंटरेस्ट आपको लगता है बायो से ज्यादा पोइट्री इन चीजों में है, तो स्विच इनटू दोस डिग्री जो वट एवर यू वांट टू डू। बट इन शॉर्ट ये कि अगर आप फिर भी बायो में परस्यू करना चाहते हो और आपको लगता है कि अभी तक आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन गेट वर्क एक्सपीरियंस। 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस लो, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो, यू विल गेट इट। इस 1 ईयर के अंदर आप अपने ऊपर काम करो, आप रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन वो कोर्सेज करो, आप उसके बारे में फर्दर सीखो, आप वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, एंड देन यू विल रीराइट, यू नो, जैसे आप पोइट्री खुद से लिखते हो उस तरह से आप अपनी डेस्टिनी या फिर आप ये कह सकते हो अपने फ्यूचर को खुद से आपका आज डिफाइन करेगा आपका कल कैसा होगा, और वो आज आपके हाथों में है। एंड आई डेफिनेटली एनकरेज यू, यू कैन एंड यू विल, फॉर एवरीवन। देयर इज नो लाइक जिन्होंने 3.9 लिया या 4 लिया सिर्फ वही ले सकते हैं। एवरीवन कैन, जस्ट डू हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट और इंशाल्लाह हो जाएगा। Thank you, ma'am. वेलकम। Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. My first question is how many intakes are there for German scholarships? जर्मन स्कॉलरशिप की 1 ही इनटेक होती है, बट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं तो उनकी डिफरेंट डेडलाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर सितंबर में पढ़ेगा उसकी डार्ट हेलमेट की डेडलाइन क्लोज भी हो चुकी है, ये ओपन अभी होगी मार्च से लेकर जुलाई। फिर डार्ट पोस्ट जो होती है वो जुलाई से अक्टूबर तक होती है, तो ये इन्हीं डेज में ये ओपन होती है। तो इनटेक तो एक ही होती है हर स्कॉलरशिप की 1 ईयर के अंदर, बट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, इस वजह से उसकी डिफरेंट डेडलाइंस हो जाती हैं। Okay, thank you, ma'am. Next question is what's the criteria to fulfill and gain the master scholarship? Master degree, just like a China, they demand the research publications. After that, they will provide the degree. And is there such rules and regulation for the scholarship and German universities? Can you explain a little bit? I didn't understand the requirement to get admission or the requirement to fulfill that degree? Fulfill the Okay. degree. Okay.
Normally, if it's 2-year course, then they have 1 year of classes, 6 months of internship, 6 months of research. But it's not very hard and fast rule. Some courses they are of 1 year, and then you have to study for half year, and half year you have to do research. Research is compulsory thing, definitely, but internship vary from course to course. So normally this pattern follows. So it vary from course to course. But my concern is, did the publication required or not? No. Publication not required. Research is required. Only the research, we can say research practice or you can say just like internship. During the study, we have to participate in the research. It's not compulsory to publish the paper. Yeah, you're right. Am I right? Yeah. Okay. And normally, how much time is taken for the master degree in the chemistry, chemical fields? Is it 2 years or 3 years? Just like the China, they demand 3 years. Within 2 years, they could not provide the degrees. Well, in Germany, mostly 1 to 2 years they take. Some programs they are of 1 year, and if they say it's 2 year, then it would be 2 year. 3-year master I have never seen in Germany. But there is a very good option. If you want to extend, you are doing part-time job, you can extend it up to how many years you want. But normally they say 2 year, which means 2 year, no 3 years. Awesome. Thank you very much, ma'am. Welcome. Assalamualaikum, मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मीटिंग का टाइम तो वैसे एंड होने वाला ना 8 से 9 बजे तक, बट मीटिंग एंड नहीं होगी जब तक आप चाहेंगे, तब तक आप मतलब अगर चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके आंसर दिए जाए, तो उस टाइम तक हम मीटिंग एंड नहीं करेंगे। ओके? Yeah, definitely. I'm available. Let them ask what they want to know. Okay. Thank you. Simab, you can ask question. Yes, thank you so much. Mariam, my question is, many of my friends, they have gap between bachelor's and master's, in between उनकी odd jobs हैं. तो मुझे बताइएगा कि अब उनके लिए when they are applying for the scholarship, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है उन्होंने, और मतलब does it actually matter अगर किसी का 4-5 साल का गैप है बीच में, या मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है? Thank you. Okay. So it's a very good question you have mentioned. गैप डेफिनेटली हो सकता है, और गैप को हमारी कंट्रीज में बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ पर गैप होना सम टाइम कंसिडर्ड अ गुड थिंग। इट डिपेंड आप गैप को एक्सप्लेन किस तरह से करते हो। आप कह सकते हो कि जी उसमें मैं अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर या अपने करियर को ग्रो करने पे काम कर रहा था। अगर आपने रेलिवेंट कोई फील्ड वर्क किया है, फॉर एग्जांपल इन योर केस एज यू आर डूइंग जॉब, तो डेफिनेटली आप बता सकते हो जितना ज़्यादा आपका फील्ड का एक्सपोजर होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, उतना अच्छा है। But in worst scenario, if someone like they just switch maybe into like they did not pursue any career and they are just at home and now they want to pursue, तो उस केस में थोड़ा सा hard to justify हो जाएगा कि उस 5 साल में आपने क्यों नहीं किया। तो आई वुड रिकमेंड इन दैट केस या तो वो कुछ टाइम कुछ कोर्सेज ऑनलाइन कर सकती हैं टू शो दैट मैंने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया है, फ्रूटफुली यूटिलाइज किया है। तो बस ये है कि गैप को आप जस्टिफाई अगर कर सकते हो तो गैप इज अ गुड थिंग। इफ यू कांट जस्टिफाई, इवन आप अपना वर्क एक्सपीरियंस को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। सो इट्स जस्ट इन योर हैंड हाउ यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। Okay. Kainat? सिद्रा ने कमेंट किया है कि व्हाट इफ द गैप्स कम ड्यू टू इस्लामिक स्टडीज। इट डिपेंड आप जिस कोर्स में नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हो, अगर उसके साथ कोई रेलिवेंसी आप बिल्ड कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आप बता सकते हो सिंपली कि जी मैं अपना डेफिनेटली यू वर स्टडिंग और यू आर परस्यूइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यू हैव टू जस्टिफाई इट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस प्लीज कायनात। I don't know Kainat is here or not. Abdul Moiz, you can ask. Ma'am, assalamu alaikum. Am I audible? Yeah, you are completely audible.
Ma'am, can you please share the notes and PDFs? Yeah, sure. I will share with the organizers even my letter of motivation and slides as well. Well, they did not have much content, but even if further you want to seek any guidance, you can contact on my LinkedIn as well. You are welcome. I will share things as well. Oh, okay, ma'am. Thank you. Sajjad Hussain. Bilal Ahmed, you can ask. Assalamu alaikum, ma'am. Am I audible? Walaikum salam. Yeah, you are audible. मैम आपका काफ़ी अच्छा सेशन था। मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो बेसिकली ये है कि आपने डार्ट के हवाले से एक्सपीरियंस का बताया, तो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में भी उतना ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है या डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है? मतलब कि 2 इयर्स का, 1 ईयर का, मैं ये पूछना चाह रहा था। Okay. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि इन केस अगर किसी ने अपनी डिग्री के दौरान, जैसे मेरी डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस की है, तो इस दौरान अगर मैंने कोई पार्ट टाइम काम किया हुआ है या मैंने कोई इंटर्नशिप की हुई है अपनी डिग्री से रिलेटेड, और कुल मिला के 3-4 इंटर्नशिप्स का या 4-5 इंटर्नशिप्स का टाइम मिला के 1 ईयर का बन रहा है, तो क्या ये मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस काउंट होगा या मुझे चाहिए होगा कि मैं डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी एक स्टेबल जॉब के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस करूं तो वो काउंट होगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट इरास्मस मुंडस के लिए भी 1 to 2 ईयर रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट। इवन डे में भी कुछ कोर्सेज के अंदर 1 या 1.5 ईयर की होता है, बट नॉर्मली जो मैंने देखा है मैक्सिमम में 95% तक में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट्स बेटर 1 पे आप करोगे तो एप्लीकेशन वीक हो जाएगी। सेकंड चीज़ है कि इट्स अ गुड थिंग यू हैव डन इंटर्नशिप्स। बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें उन्होंने लिखा होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू हैव टू चेक दिस। अगर आपके उसमें वो ये नहीं कहते हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ में उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि वर्क एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप भी काउंट होती है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, ये सारी चीज़ें। तो यू हैव टू read the guidelines where you are applying, but I would personally recommend कि it would be better, क्योंकि आपका अपना भी previous experience है। 1 ईयर का minimum आप fresh new experience ले लो, and it's not necessary कि proper job ही होनी चाहिए। It can again be internship into a very good like institute where you have learned new things, you have developed new skill, so better हो जाएगा, but you have to read the guidelines again. मैम इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में मेरे पास स्कॉलरशिप के हवाले से एक एक्सेल शीट है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है और मुझे ऐसे लग रहा है कि उसमें कुछ सेगमेंट्स मिसिंग है। तो इन केस अगर आपने जो उस टाइम स्कॉलरशिप के हवाले से एक्सेल शीट बनाई थी, अगर हमें वो भी मिल सकती है तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मैंने इसके हवाले से यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च किया था, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा अच्छी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें मतलब सारे सेगमेंट स्कॉलरशिप को हंट करने के हवाले से एक्सेल शीट में कवर किए गए हैं। सही है बिलाल। फर्स्टली अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पहले के थे। इवन अब तो कोर्सेज भी रिफाइन हो गए, तो वो मैंने अनफॉर्चुनेटली डिलीट कर दिया। बट मैं सिंपली आपको ये बता सकती हूँ कि मैं ओवरऑल अपनी पूरी कन्वर्सेशन में इसी चीज़ पर एम्फोसाइज कर रही हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल जो मेरा पाथ है या किसी भी XYZ पर्सन जिसने लिया है उसका पाथ है, वो फॉलो करना लाजमी नहीं है। आपका अपना पाथ हो सकता है, आप अपने तरह से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। एक्सेल शीट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब आप अप्लाई करने लगे हो तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने जिधर अप्लाई करना है उसका लिंक आपके पास होना चाहिए, प्रोग्राम नेम होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं। तो यही चीज़ें इट डिपेंड अपॉन योर वे टू सी द थिंग्स। मतलब किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे सेकंड में जब मैंने अप्लाई करना है मुझे पता वो चीज़ें,
कोई कहता है कि यार नहीं, मेरे पास सिंपल लिंक अगर एक्सेल शीट में पड़ा हुआ है और मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे इतना ही लंबे दोबारा से एक्सेल में लिखने की जरूरत ही है। तो इन शॉर्ट ये कि जो आपको पर्सनली लगता है ना कि ये चीजें मेरे लिए इनफ है सेकंड टाइम अप्लाई करने के लिए, you are creator of your destiny, so just be confident. Whatever you feel is comfortable, relaxing and workful for you, join it, do it. Thank you, ma'am. Welcome. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये आइट्स के हवाले से मैंने कंफर्म करना था। हमारे पास MOI लेटर भी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी है, 3.79 CGPA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएटेड हूँ और MS के लिए अप्लाई करना चाह रहा था। क्या आइट्स मैंडेटरी है? आइट्स के बगैर हम स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकते? वैसे तो ये वेरी करता है कोर्स टू कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर सोशल साइंसेस के आप हैं, आपने शायद मेंशन किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपकी, अच्छा नॉर्मली सोशल साइंसेस में तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, कंपलसरी होता है। बट आप फ्यूचर में किस डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं? लाइक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर डूइंग मास्टर्स इन फोटोग्रामेट्री, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी दफ़ा आइट्स नहीं चाहिए था, उन्होंने भी DRD में ही अप्लाई किया था। सो लाइक देर आर केसेस बट देर आर वेरी फ्यू केसेस, वेरी फ्यू प्रोग्राम्स जो आपको कहते हैं कि आइट्स नहीं होना चाहिए। और मैं पर्सनली आपको कहूंगी कि अगर आप स्टार्ट पर ही अपने माइंड में ये रख लेते हो कि आर्ट्स नहीं करना, मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो आपके ना प्रोग्राम बहुत फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर आप आर्ट्स कर लोगे विच मीन्स कि 100 आउट ऑफ 100 आप अप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट अप्लाई तो कर सकते हो, आप बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। बट अगर आप कह देते हो कि आर्ट्स में निकाल देना चाहता हूँ, विच मीन्स कि आपने 50 को पहले ही निकाल दिया, अब आपके पास अप्लाई करने के लिए ओवरऑल 50 प्रोग्राम्स बचे हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि टेक योर टाइम और आर्ट्स कर लो तो अच्छा होगा। ठीक हो गया मैम, शुक्रिया। MS इन AI के लिए अप्लाई करना चाह रहा था सर मैं। हाँ ओके। वैसे आप पार्टिकुलरली ना उस कोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हो, अगर हो सकता है उन्होंने नहीं लिखा तो फिर डेफिनेटली यू कैन स्किप इट। बट अगर एक दो में कहा है कि होना चाहिए और एक दो में कहा है कि नहीं है और आप इस बेस पर अप्लाई कर रहे हो कि इसमें आइट्स नहीं है मैं अप्लाई करूं, तो ये आप अपने साथ ही बुरा करोगे। तो दैट्स व्हाई आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू शुड परस्यू आइट्स। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अनस नजीब। मैम अनस नजीब फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट UT टेक्स में। एंड माय क्वेश्चन इज दैट कि अभी हम जो उनसे बैचलर कर रहे हैं तो अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब बाहर की जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनके साथ किसी तरह कांटेक्ट हो जाए। तो पहला तो वे जो उनसे मुझे पता है कि वो एक रिसर्च वे है कि आप किसी बाहर रेलिवेंट यूनिवर्सिटी जो उनसे आपका रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उसके किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च कर लें तो उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट आपका बन सकता है। लेकिन इसके अलावा जो और कौन से प्रोसीजर हैं जिससे उनको कन्विंस किया जा सकता है? पहले तो चूज करना बात है, पहले चूज हो जाए उसके बाद तो फिर कन्विंस बंदा किसी तरह कर लेता है या उसके लिए पढ़ता है, पहले तो चूज की बात है ना। और दूसरा आप ये काइंडली कंफर्म कर दें कि ये जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है या एम्बेसी ट्रैक, दो ही ट्रैक हैं बाहर जाने के लिए, तो इनमें से कौन सा पाथ जो है वो ज्यादा आसान है या उसमें कम एफर्ट करनी पड़ती है, और कौन सा पाथ है कि जिसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे बाहर जाने के? काइंडली ये कंफर्म कर दें, थैंक यू। मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, अपनी ये जो दो पाथ बताए हैं। खैर मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि सुपरवाइजर या फिर किसी रिसर्चर के साथ इन कांटेक्ट होना, पहले तो ये है कि यू हैव टू रीविजिट के अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मनी में आ रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी रिसर्चर से या इस तरह से कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल कनाडा वगैरह में होता है, UK में भी होता है, तो यू हैव टू रीथिंक अबाउट इट कि अगर तो कंपलसरी है, वाकई चाहिए तो अच्छी चीज़ है। बट हाँ सेकंड समटाइम ऐसा होता है अगर उनके पास कुछ फंडिंग हो तो समटाइम वो मास्टर्स के लिए आपको फंडिंग कर सकते हैं, बट मास्टर्स के लिए और भी बात होते हैं। तो यू हैव टू रीथिंक कि आप एनर्जी जिस चीज़ पे लगा रहे हो डेट मेक सेंस कितनी, बट लाइक यू डेफिनेटली सर्च अबाउट इट। तो सुपरवाइजर को चूज या किसी भी रिसर्चर को चूज कैसे करना है, उसका
मैं पर्सनली जो मेथड यूज करती हूँ, 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि आपको पता हो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, ये डिफाइन आपको है क्लियरली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट है हेल्थ इनइक्वालिटी पर, तो मैं क्या करूँगी कि मैं गूगल स्कॉलर पर जाऊँगी। आई होप कि आपको आइडिया होगा गूगल स्कॉलर यूज करने का। तो सिंपल, आप गूगल स्कॉलर पर जाओगे और आप लिखोगे हेल्थ इनइक्वालिटीज, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इन जर्मनी, इस तरह से कोई भी आप अपना रिसर्च का एक तरह से, जिस तरह आप 2-3 वर्ड लिखते हो कीवर्ड, वो लिखोगे, आपके पास आ जाएगा तमाम जर्मनी के अंदर प्रोफेसर जो उस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं गूगल स्कॉलर के ऊपर। आप सिंपली उधर से उनकी 1 बाय 1 प्रोफाइल देख सकते हो, और जो आपके इंटरेस्ट और जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है उसके साथ जो रेलिवेंट है सिर्फ उन्हें करें। आप दिन में बजाय इसके कि 20 को करें और रेलिवेंसी नहीं है, इट डिड नॉट मेक सेंस। आप 2 को करें, रेलिवेंस होना चाहिए, उनके काम को वाकई पढ़ो, उनके काम को कोट करो कि मैंने आपका ये काम पढ़ा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, दैट्स व्हाई आई वांट टू लाइक परस्यू माय फर्दर प्रोसीडिंग्स विद यू। सेकंड पैटर्न ये होता है कि आप गूगल करते हो कि जर्मनी के अंदर या जहां भी आपने जाना है यूनिवर्सिटीज कौन सी अवेलेबल हैं, टॉप 10, टॉप 15, टॉप नहीं भी तो ओवरऑल 50 फॉर एग्जांपल। उसमें से जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबुर्ग आपको अच्छी लगती है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबुर्ग के पेज पर जाओगे और आप उधर फैकल्टी का एक ऑप्शन होता है, जो भी आपकी फील्ड है, आप फैकल्टी के ऑप्शन में जाओगे और आप देखोगे कि इस प्रोफेसर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। डेफिनेटली जो भी आपकी फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहे, उसकी फर्दर आगे से बहुत सारे सब एरियाज होंगे, तो उधर से आप चूज कर सकते हो कि इस प्रोफेसर की ये मेल है और इसका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और ये मेरे साथ मैच होता है, और आप उन्हें, सेकंड पाथ ये होगा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप उन्हें मेल कर सकते हो। फर्स्ट पाथ वुड बी टू टैकल देम फ्रॉम गूगल स्कॉलर। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि हम किस तरह से 2 पाथ जो आपने मेंशन किए हैं, काइंडली आप इसे ब्रीफ कर दे। मैं समझी, मुझे समझ नहीं आया, आपने कहा यूनिवर्सिटी का पाथ और एम्बेसी का पाथ, आई डिड नॉट गेट इट। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको कहा है कि मतलब हमारे पास 2 पाथ मेनली होते हैं किसी भी इंटरनेशनल जगह पर जाने के लिए, मुल्क में जाने के लिए, जिसे यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक कहा जाता है। बेसिकली यूनिवर्सिटी ट्रैक का मैं ये पूछ रहा था कि ये ज़्यादा इजी है, या इसमें अगर किया जाए तो कम एफर्ट करनी पड़ती है, या एम्बेसी ट्रैक है, तो ये काइंडली आप कंफर्म कर दें, इसके बारे में मेरा क्वेश्चन। एक्चुअली ना मेरी इंफॉर्मेशन में अभी तक ये चीज़ क्लिक नहीं की कि एम्बेसी ट्रैक या यूनिवर्सिटी ट्रैक में डिफरेंस क्या है। अगर आप मुझे वो बता दें, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्बेसी तो आपको वीज़ा ग्रांट करेगी और यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, तो जब आपने एम्बेसी जाना है आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन कंपलसरी होना चाहिए, वट एवर वे यू हैव, थ्रू स्कॉलरशिप या जिस भी तरह से। तो मैं इस चीज़ पर एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या एम्बेसी से नहीं जाना है या एम्बेसी ट्रैक में यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। तो चूंकि मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, या फिर ये कुछ अगर वेल डिफाइंड टर्म्स हैं तो मुझे इन चीज़ का आइडिया नहीं है। आप बता दें पाथ में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता सकती हूँ फिर। इसमें बेसिकली अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक है ना, तो वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो सी हैं वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो रही हैं। अच्छा, और एम्बेसी ओके। ट्रैक ये है कि मतलब कोई भी कंट्री है, उसने अपने मुल्क के अंदर कुछ स्पेसिफिक की हुई ओके, है स्कॉलरशिप, तो ये मैं बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, सही है ना। नाउ आई गॉट इट। स्कॉलरशिप के बारे में आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि यूनिवर्सिटी इजी तो इन सम केसेस कुड बी के एम्बेसी या आपकी पार्टिकुलरली एचईसी वगैरह की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, बट उसका ड्रॉबैक ये आता है कि वो मैक्सिमम टाइम 90% तक वो आपको दोबारा उस कंट्री में रहने नहीं देंगी, आपकी कन्वोकेशन नहीं होगी और आपकी एचईसी आपको पकड़कर वापस लाएगी कि उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, यू हैव टू सर्व हेयर, तो आपको लॉन्ग टर्म में इतने बेनिफिट नहीं होते। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने एम्बेसी के थ्रू फॉर एग्जांपल कर रहे हो, तो कॉमन सेंस में मेरी जो समझ में आ रही है, आपका कंपटीशन सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों के साथ है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो विच मीन्स कि दुनिया के 193 कंट्रीज के लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, तो इन दैट वे इट मेक लिटिल बिट सेंस कि वो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री की बेस पर कर रहे हो। ओके, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद अराबी। वालेकुम Ma'am, I सलाम। have 2 questions. The first one is about the recommendation letter. I'm currently doing internship and I'm in 5th semester of software engineering. So मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सुपरवाइजर्स से, मतलब जो हमारे इंटर्नशिप में उनसे लेना गुड प्रैक्टिस है, या जो यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स हैं उनसे लेना बेटर ऑप्शन है?
एंड इसी में ये भी क्वेश्चन है कि प्रोफेसर की या जो सुपरवाइजर है उनकी डेजिग्नेशन मैटर करती है या नहीं करती, मतलब कि वो पीएचडी होल्डर है तो तब ज्यादा वेट कैरी करेगा या तब वो मैटर नहीं करता। मेरा ख्याल है कि वो वेटेज मैटर तो करेगी, थोड़ा बहुत करेगी, बट बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत करेगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर लिखा देंगे, खैर पाकिस्तान के अंदर तो मोस्टली अगर कोई अच्छा हो तो वो कह देता है आप खुद ही लिख कर ले आओ, मैं आपको साइन कर दूंगा। तो लेटर ऑफ जी रिकमेंडेशन भी मेरा तो ख्याल है कि एक ही कभी आप यूज ना करें। अगर आप एक जगह पे अप्लाई कर रहे हो, दूसरी जगह में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिस तरह से आप लेटर ऑफ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके अंदर आप बताते हो कि मैंने प्रीवियस ये सीखा है और मैं फ्यूचर में ये अप्लाई लर्न करना चाह रहा हूँ। उसी तरह से रिकमेंडेशन लेटर के अंदर भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे भी ले रहे हो वो वही चीजें मेंशन करें कि जी मैंने प्रीवियसली मेरे साथ इसने काम किया है या मैंने इसे पढ़ाया है, वट एवर योर रिलेशनशिप इज, इसने ये स्किल मेरे अंडर डेवलप की है। और इट शुड बी क्लोजर टू दो स्किल्स जो आपका प्रोग्राम आपको टॉट करना चाहता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी ना कस्टमाइज बेस्ड अपॉन इन विच एरिया यू आर अप्लाइंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं और आपका मतलब रिसेंटली आप ग्रेजुएट हुए हो, तो आई वुड रिकमेंड वन आप एकेडमिक ले लो, उधर एकेडमिक वाला जो है वो ये बता दे कि इसने मैंने इसे पढ़ाया है और इसे ये चीज कॉन्सेप्चुअली थियोरेटिकली अच्छे से आती हैं। एक आप जिधर आपने एक्सपीरियंस किया आप उधर मेंशन कर दो और उनसे आप ये ले सकते हो कि जी इसने मेरे साथ काम किया है और इसके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है बल्कि इसके पास इन चीजों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो वो कोशिश करें कि कस्टमाइज कर लें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, तो Got दैट it. वुड बी गुड। Got it, ma'am. Ma'am, the second question is अब हमारा तकरीबन 1.5 ईयर रहता है राइट, लाइक यूनिवर्सिटी में अभी 6, 7 और 8 सेमेस्टर रहते हैं। तो मैम व्हाट आर द टॉप 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप रिकमेंड करेंगे कि एक स्टूडेंट करे, नॉनदलेस जस्ट डार्ट के लिए नहीं, मतलब और भी जो टॉप के स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी, मतलब ये प्रैक्टिसेस जो है आप रिकमेंड करेंगे? यस जी आई गॉट इट। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। ये मत सोचो कि डार्ट में करना है, इरास्मस मुंडस में करना है या फिर कहीं आपने प्रैक्टिकल पाकिस्तान में रहकर जॉब करनी है, ये मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि आप अभी जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, आपके पास अपने सब्जेक्ट ग्रिप होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। अगर टेक्निकल फील्ड है तो अपनी उससे रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स सीखो। You should be best in whatever you are doing, and as a personality as well you should have like good communication skills, you should have good networking as well। networking बहुत ज्यादा important होती है। तो जो आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो स्किल्स जो चीजें चाहिए आप सिर्फ उस पे काम करो। once you are a good human being, once you are a master in your field, whatever you do you will definitely win it। All right, ma'am. Thank you very much. Welcome। किराज, Kiraj, are you here? जब तक आप करते हैं फिगर आउट, एक दो लोगों ने मैसेज किया हुआ है, उनका शायद माइक नहीं वर्क कर रहा। अरफा ने पूछा है कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए, अरफा मुझे ऐसा आइडिया नहीं है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, चूंकि मेरी इंग्लिश से ज़्यादा बनती नहीं थी। तो आई वुड रिकमेंड बहुत सारे, अब हमारे पास स्कॉलरशिप फिगर आउट करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल भी हैं। अगर वो नहीं तो सिंपल आप चैट जीपीटी या फिर गूगल पर लिख सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर से रेलिवेंट कौन सी ज्यादा रेलिवेंट या बेटर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी, मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है। और आइट्स बैंड जो हैं वो डेफिनेटली मैटर करते हैं। डे में भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पर भी जहाँ कहीं भी मैटर इस तरह से करते हैं कि हर यूनिवर्सिटी ने अपना बेसिक बताया होता है कि आपका 6.5 इन ईच मॉड्यूल, नेवर लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपने वो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी ही करनी है। तो इन दैट वे वो मैटर तो करता है। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुल हो रही है फिर ठीक है, फिर ज्यादा ना भी हो 8-9, दैट डिड नॉट लाइक डेफिनेटली मतलब कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट तक तो आपका वो डिफाइनिंग चीज है। वो नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं होगी सेकंड स्टेज पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
किराज इज हेयर, नहीं तो अब्दुल रहमान क्वेश्चन कर रहे हैं. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. My question is that what opportunities or program do students have that don't require postgraduate experience? Like this scholarship demands that student have postgraduate scholarships. So what are the opportunities that admit student right after their bachelor's? वेल टेल यू द ट्रूथ, इंटरनेशनली बहुत कम आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी. पार्टिकुलरली जर्मनी में तो नहीं होगा. जर्मनी में तो आप किसी भी तरह से मास्टर्स में अप्लाई करते हो 1 to 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. कंट्रीज देख सकते हो आप, फिर यूके वगैरह में. यूके में समटाइम मैंने सुना है, बट वर्क एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है. मेरे जितने भी नाउन पर्सन है जो यूके में भी कर रहे हैं, इवन कनाडा में भी कर रहे हैं, उसमें फिर सेकंड ये होता है जो कि विच इज नॉट अ वेरी डिजायर्ड वे. कुछ लोग ये करते हैं कि कोई जानने वाला है तो वर्क एक्सपीरियंस शो कर देते हैं. दैट कुड बी द फॉर्म. अदरवाइज अगर हम ऑफिशियली बात करें तो बहुत बहुत लेस अपॉर्चुनिटी है विदाउट वर्क एक्सपीरियंस. Thank you, ma'am. मैम वन लास्ट क्वेश्चन. ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम यूनिवर्सिटी से वैसे भी गो थ्रू हो रहे हैं, तो जो अच्छे प्रोफेसर मिल रहे हैं हम उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेते रहे, या इज इट नॉट अ गुड प्रैक्टिस? डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रैक्टिस. आप उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हो. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली रिकमेंडेशन लेटर के एंड पर आप मेल देते हो सुपरवाइजर की. तो सिर्फ आपने ये नहीं देखना है कि उसकी आगे किसी ने पूछा था डेजिग्नेशन कितनी मैटर करती है. सम टाइम ये होता है, फॉर एग्जांपल आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपको एक दफ़ा तो लेटर दे देगा, बट हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहेगा कि अगर मुझे इस यूनिवर्सिटी ने मेल करके पूछा तो मैं फ्री नहीं हूँ भी फॉर्म फिल करने के लिए. तो इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है कि जिनसे भी आप लो, आप एटलीस्ट उनका कंसेंट लो. और जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगे हो, जिस भी XYZ, उन्हें एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दो कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ. माइट पॉसिबल क्रॉस चेक करने के लिए वो आपसे पूछ लें, तो काइंडली आप देखिएगा जिन टीचर्स के साथ आपकी थोड़ी अच्छे कनेक्शंस हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रैक्टिस. ऑलराइट, थैंक यू. अरफा. Arfa, are you here? आरफा ने शायद मैसेज किया था, उनका माइक का शायद प्रॉब्लम है. Yes, I am here. हाँ, ओके. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम मैंने लिटरेचर लिंग्विस्टिक का पूछा था, वो तो आपने बता दिया था. तो मुझे कंट्री बता दें कि अगर मैं इटली को टारगेट करूं तो क्या ठीक रहेगा? वेल यू हैव टू सर्च अपॉन इट. कि इटली की अपनी लैंग्वेज तो इंग्लिश है नहीं, और ना ही इटली वालों को वैसे भी इंग्लिश आती है. तो जी. ये फिर देखना पड़ेगा कि वो भी इसे टेक्निकली एक साइड सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा रहे हैं. सो माइट बी इफ यू सी दोज कंट्रीज जिनकी अपनी एटलीस्ट इंग्लिश है, तो आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि उनकी लिटरेचर लिंग्विस्टिक वगैरह अच्छी होगी. बट डेफिनेटली इफ यू हैव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव, मे बी इन इटली यू समवन फ्रॉम योर फैमिली लिव और लाइक दिस, देन यू कैन डेफिनेटली फिगर आउट. ओके, then you can definitely figure out and you see अगर वो कोर्स अवेलेबल हैं, वो टॉट करवा रहे हैं, तो अप्लाई कर दो. खैर है, जैसा हम पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं सेकंड लैंग्वेज, वहां पर भी सेकंड लैंग्वेज होगी. ओके मैम, थैंक यू सो मच. वेलकम. कायनात नदीम. कायनात. I guess she is not here. तो सेशन एंड एंड वाली साइड पे जाते हैं. रबिया. Okay, I guess हमारी तरफ से बस इतने ही questions होंगे आज के लिए. And as we conclude today's webinar, I would like to extend my heartfelt gratitude to our honorable speaker, Ms. Mariam. Thank you so much for answering all the questions in very detail and giving such an amount of time to us from your busy life. Sincere thank you to all the participants who join us in making this session interactive and successful. Special appreciation to the entire Scholar Library Society team and all the chapters across Pakistan. Thank you so much. Thank you, ma'am.
वेलकम। 1-2 क्वेश्चन रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ने किए हैं, तो मैं तो ऐसे अवेलेबल हूँ, अगर चूंकि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक दफ़ा उनका क्विकली आंसर दे देती हूँ। आई गेट रिकमेंडेड फ्रॉम, अच्छा, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर का किसी ने पूछा, उनसे रिकमेंडेशन लेटर आप ले सकते हो, बट नॉर्मली विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के पास यूनिवर्सिटी की मेल नहीं होती है, तो यूनिवर्सिटी की मेल नहीं होती है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेशन लेटर को वैल्यू नहीं करती हैं। तो अगर तो उनके पास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल है और यूनिवर्सिटी उन्हें अलाउ करती है कि वो ऑफिशियल अपना पेज यूनिवर्सिटी का लेटर हेड है वो यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन हैव इट। बीबीएसआर की फिफ्थ सेमेस्टर फ्यूचर में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे अभी कौन सी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। बीबीए बीबीए एचआर में आप फर्दर अगर एमबीए या जो भी आप करना चाहते हैं उससे रेलिवेंट जो भी स्किल सेट मैटर करता है जो आप करना चाहते हो उसमें आप वर्क एक्सपीरियंस गेन करें और थियोरेटिकली वो कोर्सेज करें जो आप इन फ्यूचर जिस चीज़ में आप स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं। ये बीबीए वाला इतनी दफ़ा आया हुआ है। शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल हेयर। ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोग शेयर कर देंगे या मैं इधर मैसेज में ही शेयर कर दूं? मैं आप शेयर कर दें। ओके, गिव मी 1 मिनट, मैं 1 मिनट चेक करके देती हूँ। ये और कुछ मैसेजेस आए हैं, अगर आप उन्हें पढ़ दें, मैं 1 मिनट अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल उतनी देर शेयर कर देती हूँ। यस मैम, मैं पढ़ देती हूँ। If a degree is getting older more than 6 years, can we apply? ओके, ये इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सिमाब ने भी किया था। इट डिपेंड, अगर आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है और आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने उन 6 इयर्स के अंदर वर्क किया है, क्या किया है, तो देन डेफिनेटली इट विल इन्हेंस योर स्किल्स। तो अगर तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने मतलब क्या किया, आप एकेडमिकली या कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने किया होगा, तो उसकी आप कोई ना कोई बीच में रेलिवेंस बिल्ड करें व्हाट यू वांट टू परस्यू, या फिर आपने 6 इयर्स में जो भी कुछ किया है उससे रेलिवेंट आप मेंशन करें, उससे रेलिवेंट कोर्स चूज करें, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस। ओके, एमबीए के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर अप्लाई करना है तो? जर्मनी में आप कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जर्मनी वर्क एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करती है, तो मिनिमम 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ये कंपलसरी होता है। कोई भी डिग्री है, डिड नॉट मैटर एमबीए है, अगर कहीं मिल भी जाएगा तो विच मीन्स के बहुत कोई आपको लाइक बिलो एवरेज यूनिवर्सिटी में मिला है तो वो फ्यूचर में फायदा नहीं होगा, तो बेटर है वर्क एक्सपीरियंस लेके अच्छी यूनिवर्सिटी में कर लो। मैंने लिंक्डइन का लिंक शेयर कर दिया है, आप होपफुली ये वर्क करेगा, चेक कर लीजिएगा, कोई इशू हुआ तो बता दीजिएगा। जी, क्विकली, कैन वी स्विच अवर करियर टू सम अदर डिग्री व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम बैचलर डिग्री? यू कैन डेफिनेटली स्विच, बट यू हैव टू कन्विंस देम दैट व्हाई यू हैव स्विच इट। और अगर आप स्विच कर रहे हो तो उसमें लाइक हाँ, वैसे मैंने तो खुद स्विच किया, मैं साइकोलॉजी से पब्लिक हेल्थ में आई हूँ और माइट बी इन फ्यूचर पीएचडी में एंथ्रोपोलॉजी में चली जाऊँ। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑडियंस को कि जी आपने जो स्विच किया है ये वाकई एक वॉइस डिसीजन था और जो आप फ्यूचर में करना जा रहे हो उससे रेलिवेंट आपके पास स्किल सेट या नॉलेज है, तो फिर ये चलेगा, जरूर चलेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो कन्विंस तो फिर आपकी एप्लीकेशन वीक हो जाएगी। पीएचडी केमिस्ट्री के लिए कौन सी कंट्री बेस्ट ऑप्शन है? मुझे पर्सनली लगता है डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं बेस्ट ऑप्शन है, बट यू हैव टू सी कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एरिया होता है स्पेशलाइजेशन का या डिपार्टमेंट होता है। आप डेफिनेटली क्यूआर रैंकिंग जो इंटरनेशनल होती है वो देख सकते हो। तो आप जिस भी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इवन यूएसए में, जर्मनी में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो जिनकी रैंकिंग बहुत लो होगी, और डेफिनेटली हम इवन कहीं और चले जाए, मे बी सऊदी अरेबिया, वहां पर भी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होंगी। इवन पाकिस्तान में कायद आजम की रैंकिंग काफी अच्छी है। तो इट एक्चुअली डिपेंड डेफिनेटली अपॉन डेवलप्ड कंट्री, एज आप कोई भी ले लो, और यूनिवर्सिटी चूज करते हुए उसका डिपार्टमेंट पर आप देख लो कि वो कितना मिच्योर या कितना पुराना है, वो कैसा वर्क कर रहे हैं, तो दैट कैन मे बी फैसिलिटेट यू इन डिफाइनिंग इंटरनेशनल। वालेकुम सलाम। जी जी। I have to ask a question about a student exchange programs. Can you suggest any?
कैन यू सजेस्ट एनी बात ही मुझे समझ आई। Any suggestions for student exchange programs जो होते हैं? मैंने पर्सनली कभी वो जो हाफ लाइक 1 सेमेस्टर के लिए अभी आई थिंक चाइना की तरफ से भी आया हुआ है, कभी किया नहीं है, बट जो मुझे नाकिस इल्म है उसके अकॉर्डिंग सजेशन यही है कि डेफिनेटली अगेन उधर भी आप फॉर एग्जांपल 20 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, तो उन 20 में से जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जिसकी सीवी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो उन 20 में से विन कर जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला ला ही है। अगर आप किसी भी चीज के लिए इंटरेस्टेड है इन फ्यूचर, इवन जॉब के लिए, फॉर्मूला सेम ही है, वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोर्सेज करो, आपके पास एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं दूसरे किसी के पास नहीं है, आपको +5 ज्यादा मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल। ओके। या तैयबा मुबशर ने पूछा रैंकिंग मैटर करती है? मैटर तो करती है लाइफ में, बट इतना ज्यादा नहीं करता। आप भी मैटर करते हो, आप जिस जगह पे बैठे हुए आपको देख के लगता है कि आप पढ़कर आए हो, आप दुनिया की नंबर 1 से पढ़कर आओ, और अगर आपके अंदर स्किल ना हुआ तो मैटर नहीं करता। तो इट्स 50-50 गेम, इतना ज्यादा और इतना कम भी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में कि कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहिए एमएस के लिए? इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन मैंने जो केमिस्ट्री के लिए आंसर दिया था, कोई भी डेवलप कंट्री ले लो, यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए और उसका डिपार्टमेंट थोड़ा सा ओल्ड हो, आपको पता चल जाएगा उसे। आप जब देखोगे वहां पर फैकल्टी को देखकर, उनकी प्रोफाइल्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की आप रैंकिंग देख सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन में किसकी रैंकिंग अच्छी है। और आई थिंक सो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे का आप कैटर हो गया। लिंक्डइन मैंने शेयर कर दी है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर इट। दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच सिमाब आपका भी, और उनजा आपका भी। आप लोगों ने अप्रोच किया और आप लोगों ने यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब कि आप लोग ये स्टूडेंट को टाइमली इन तमाम चीज़ों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। और इन फ्यूचर अगर मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप में से किसी को भी, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी। और दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं फिर जर्मनी में। थैंक यू मैम। वी कैन लीव नाउ। Yes, Rabia and will a little bit note for the participants. आप में से प्लीज गूगल का जो लिंक भेजा था उसको फिल करें फॉर्म। इट्स फॉर सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मिलेंगे। इतना इंसाइटफुल सेशन था फ्रॉम मरियम। थैंक यू सो मच, एंड yeah, have the best wishes from all of us. May you have a lot of fun in Germany as well. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Thank you, ma'am.